નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 4 કથની ઓર કરનીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે અથવા તો ચેનલના પ્લેલિસ્ટ પરથી તમે મેળવી શકશો। મિત્રો, ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનની પીડીએફ, હા દોસ્તો પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે, તો જરૂરથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને તમામ જે સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન છે તેમનો અભ્યાસ કરી લેવો। તેમજ આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને જે પણ વિષયના જે પાઠના વિડીયોની તમારી જરૂરિયાત હોય તેની લિંક તમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ ઉપર તેની લિંક તમે વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત કરી શકો। તો મિત્રો, આ વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટેની લિંક, એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક અને વિડીયો જોવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, તો જરૂરથી ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સનો અભ્યાસ કરી લેવો। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 4 कथनी और करनी। एमा प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने लिखिए। पहलो सवाल, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो जवाब आवश्य विकल्प ए, गुणों की खान। बीजो सवाल, बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? तो जवाब आवश्य विकल्प डी, कैबिन। त्रीजू, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? तो जवाब आवश्य विकल्प ए, 4। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? तो जवाब आवश्य विकल्प बी, 8। पांचवूं, आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना यह खाली जगह के लिए अच्छा नहीं होता। तो जवाब आवश्य विकल्प डी, आचरण। मित्रों, આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે। આ એપ્લિકેશનમાં તમે ધોરણ 3થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકશો, જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતી, દરેક પાઠના સ્વાધ્યાય, દરેક પાઠની સ્વાધ્યાયન પોથી, દરેક પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, એકમ કસોટી અને તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફો તમે અહીંથી મેળવી શકશો। તો જરૂરથી આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેજો, તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધીઓ દરેકને જાણ કરજો કે જેઓ પણ ધોરણ 3થી 12માં અભ્યાસ કરતા હોય। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, અથવા તો તમે પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈ અને ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ લખશો તો પણ તમે ખૂબ જ સરળતાથી ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકશો। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। અહીંયા કાઉન્સમાં તમે જોઈ શકો છો આપણને કેટલાક શબ્દો આપેલા છે। એમાં પહેલો સવાલ, ईश्वर ने मनुष्य को कई खाली जगह से संवारा है। तो जवाब आवश्य गुणों। बीजू, खाली जगह के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। तो जवाब आवश्य बरसात। त्रीजू, लोगों ने खाली जगह लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। तो जवाब आवश्य तख्ती। चौथું, बसों में खाली जगह करना वर्जित है। तो जवाब आवश्य धूम्रपान। पांचवुं, सदा अपनी खाली जगह की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो जवाब आवश्य बारी। छठुं, कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं उन्हें अपनाते नहीं। तो जवाब आवश्य आदर्श। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। એમાં પહેલો સવાલ, पार्क में लोगों के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि। तो यहाँ जवाब आवश्य लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि। तो અહીંયા જવાબ આવશે हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। ત્યાર પછી ત્રીજું, बसों में लिखा होता है। तो जवाब आवશે धूम्रपान करना वर्जित है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। એમાં પહેલો સવાલ, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो जवाब आवશે मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। बीजो सवाल, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? उत्तर, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा, मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। त्रीजो सवाल, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? उत्तर, बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं? तो जवाब आवश्य कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं। पांचवों सवाल, दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? उत्तर, दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर अपने बेटे को नहीं। ત્યાર પછી છઠ્ઠો સવાલ, मकान मालिक क्यों हंसने लगा?
उत्तर, मकान मालिक किरायादार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। 7वां सवाल, बिल भरने में लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? उत्तर, बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। ત્યાર પછી 8મો સવાલ, जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमारी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा पहलो सवाल, फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? तो उत्तर, फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी। उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। वहां से आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते, तख्ती पर लिखी हुई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था उसे वे स्वयं ही कर रहे थे। इस प्रकार इस सज्जन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर था। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો સવાલ, बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ? उत्तर, बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उसे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर और ड्राइवर केबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे। एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने की मनाही केवल यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं। इस प्रकार बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद प्रकट होता है। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો સવાલ, दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई? तो જોઈએ उत्तर, एक व्यक्ति दुकान से कुछ सामान खरीदना चाहता था। वह अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। दुकानदार ने उसे वहां स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है। दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर दिया। इतने में दुकानदार का बेटा आया। उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने सड़क पर खड़ा किया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया। इस प्रकार दुकानदार की कथनी और करनी की पोल खुल गई। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? જોઈએ उत्तर, किराएदार अपने घर में एक मित्र से बात कर रहा था। उसी समय मकान मालिक उससे 4 महीने से बाकी किराया लेने आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। किरायादार ने खिड़की से झांककर उसे देखा। उसने अपने बेटे को समझाकर बाहर भेजा। बेटे ने कहा, पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। बेटे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठा मित्र मुस्कुराया। इस तरह किराएदार मित्र ने अपनी कथनी और करनी में अंतर के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ 5મો सवाल, धूम्रपान का निषेध है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? उत्तर, धूम्रपान निषेध है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमागृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालयों, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि जगह पर लिखा होता है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। ત્યાર પછી छठो सवाल, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? उत्तर, लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनों और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए, मॉल में बिल चुकाने के लिए, बैंक में रुपये जमा या निकालने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। એમાં પહેલો સવાલ, गुणों की खान, तो અહીંયા જવાબ આવશે बहुत गुणों। तो वाक्य आवશે, आप तो सचमुच गुणों की खान है। ત્યાર પછી બીજો સવાल, पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत लज्जित होना। तो वाक्य आवશે, अपना झूठ पकड़ा गया तब लड़की शर्म से पानी पानी हो गई। ત્યાર પછી પ્રશ્न નંબર 7, ઉચિત જોડ મિલાઈએ। ચાલો, તો અહીંયા પ્રશ્ન ચિહ્ન આપણને આપ્યું છે, તો એની સામે આપણે લખીશું પ્રશ્નસૂચક ચિહ્ન। ત્યાર પછી પૂર્ણ વિરામ છે, તો લખીશું પૂર્ણ વિરામ। ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે, તો અહીંયા ઉદ્ગાર ચિહ્ન। ત્યાર પછી અલ્પ વિરામ, ત્યાર પછી છે અવતરણ ચિહ્ન અને ત્યાર પછી છે યોજક ચિહ્ન। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 8, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए।
मैं पहलू फूल तोड़ना मना है तो अहींया छेल्ले अहींया पूर्ण विराम आवशे। बीजू वाह कितना सुंदर दृश्य है तो अहींया वाह पछी उद्गार चिन्ह अने कितना सुंदर दृश्य है पछी पूर्ण विराम। त्रीजू बसों में लिखा होता है धूम्रपान का निषेध है तो बसों में लिखा होता है पछी अल्प विराम पछी अवतरण चिन्ह में आवशे धूम्रपान निषेध। त्यार पछी चौथुं धारा रात दिन पड़ती रहती है तो अहींया रात दिननी वच्चे योजक चिन्ह आवशे अने छेल्ले पूर्ण विराम। पांचमું पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं तो पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं अहींया पूर्ण विराम आवशे। त्यार पछी 9मो सवाल कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। चालो तो अहींया तमे जोई शको छो कि उदाहरणनी अंदर उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लखवाना छे। तो अहींया जो तोड़ना फूल मना अने है एना उपर अंडरलाइन छे तो उदाहरण तो फूल तोड़ना मना है बराबर तो अहींया आवशे फूल तोड़ना मना है। एवी रीते आपणे बीजा वाक्यो बनावीए तो मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। बीजू सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। त्रीजू वे कहीं से अच्छे पौधे लाए हैं। चलो त्यार पछी आपणे जोईए प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। एमां पहलो सवाल आम के आम गुठलियों के दाम तो अहींया जवाब आवशे दोहरा लाभ लेना। बीजू जैसी करनी वैसी भरनी तो अहींया जवाब आवशे कर्मों के अनुसार फल मिलना। त्रीजू साँच को आँच नहीं यानी कि सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। चौथो सवाल काला अक्षर भैंस बराबर तो जवाब आवशे बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना। त्यार पछी प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो सच्चा तो एनु भाववाचक थशे सच्चाई, ऊंचा तो ऊंचाई, बच्चा तो बचपन, लंबा तो लंबाई, अमीर तो अमीरी, बूढ़ा तो बुढ़ापा। त्यार पछी प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। तो अहींया मनुष्य नीचे अंडरलाइन छे तो मनुष्य जे छे ते जातिवाचक संज्ञा थशे। त्यार पछी बीजू हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए तो एमां अहिंसा अहिंसा ए भाववाचक संज्ञा थशे। त्रीजू रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है तो भीड़ ए समूहवाचक संज्ञा थशे। त्यार पछी चौथुं क्षमा वीरों का आभूषण है तो क्षमा तो ए भाववाचक संज्ञा थशे। फूल सबको अच्छे लगते हैं तो फूल ए जातिवाचक संज्ञा थशे। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए तो विनम्रता ए भाववाचक संज्ञा थशे। सातमुं सभा में कई लोग इकट्ठे हुए तो सभा ए समूहवाचक संज्ञा थशे। मित्रों आपणे ओशन कोचिंग क्लासीस नामनी एक जबरजस्त एप्लिकेशन लॉन्च करेली है। आ एप्लिकेशन पर तमे धोरण 3 થી 12 બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફો મેળવી શકશો। જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર અને તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફો અહીંથી તમે મેળવી શકશો। તો જરૂરથી આ તમામ પીડીએફ મેળવી લેવી। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। હવે જો એપ્લિકેશન તમે ડાયરેક્ટ પ્લે સ્ટોર પર જઈને ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોય તો પણ તમે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ લખશો એટલે સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકશો। મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર બધા જ વિષયની જે ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે અથવા તો ચેનલના પ્લેલિસ્ટ પરથી પણ મળી જશે। તો મિત્રો જરૂરથી આ જે લિંક છે તે તમારા દોસ્તો અને મિત્રો સુધી શેર કરજો। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, શેર કરવાનું અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।